Hello, my dear friends. I am Professor Wayan Khan, and we are back with our online lectures of subject Automatic Control System. And we are done with unit number 1, unit number 2, unit number 3 of this particular subject, and we are at the verge of completing this unit number 4 also. So, this unit number 4 is transient and steady state response analysis. In this transient and steady state and response analysis unit, we have completed the part where we have studied the transient and steady state response, and we have also studied the first order system, second order system, which are the various inputs to these systems, as well as the kind of response that we get, like if your input is unit input, then the response will be called as if your unit is step input, if your input is step type, then your response will also be called as step response. If your input is impulse, then your output or response will also be impulse response. So that part we have already covered. Now in this today's part, we are going to understand what is the concept of time constant and its importance in speed response. So what do you mean by time constant? What are the various specification, or you can say time domain specification, transient response specification that we have to study? And let us start, let's begin that part. So the concept of time constant, the word time constant, why we have to study this time constant? Okay, suppose you have a program, you have arranged a family program at your house, and you have invited some of the guests. Okay, so you will be planning according to the number of guests, as well as at what time they will be coming to your home or house, and you will be arranging everything according to the number of guests and their coming time, and what duration they will be staying at your place, right? So suppose you have invited 10 guests, and at 6 o'clock or 7 o'clock in the evening, and suppose out of these 10 guests, say 6 guests arrive early, or suppose 6 guests arrive late at 8 o'clock, or say 8:30 o'clock. Okay, so at that time your whole schedule will be hampered. Yes, so there will be situations like this where the system have to respond to different types of inputs, right? And this time constant is that factor that decides how your systems, or how your control systems responses to the inputs, right? So when the guest arrives early, you will do something to arrange some food for them, or you will arrange some welcome drinks for them. And if they arrive late, so you will reheat your food, or you will rearrange some welcome drinks or something. You will make some changes in your program, right? So you will make changes in your schedule. So likewise, whenever a control system is performing, whenever control system is responding to some of the input, its process variables, they react to these inputs, right? So this time constant is nothing but, time constant is the how fast variable, how fast your process variable processes the inputs. So the timing of a control system's response is very important. If you are pushing a button at this moment, and if you are getting the response after 10 minutes, then that system is very slow, correct? So this time constant decides how fast a variable processes, कितना फास्ट एक वेरिएबल
काम करता है, ये चीज़ हमको टाइम कांस्टेंट से पता चलती है। ठीक है। सो प्री मैच्योर और डिलेड रिस्पॉन्सेस नेगेटिवली इम्पैक्ट द कंट्रोलर परफॉर्मेंस। अगर मैंने इनपुट दिया और जितने समय में वो आउटपुट देना चाहिए उससे ज़्यादा वक्त अगर वो ले रहा है तो मेरा सिस्टम स्लो हो जाएगा, उससे कम अगर वक्त ले रहा है तो मेरा सिस्टम क्या बोलेंगे हैंग हो जाएगा या ओवरलोड हो जाएगा, बराबर है। सो ये डिले जो है, जैसा इनपुट दिया वैसा उस हिसाब से आउटपुट जो आना है, इसमें जो डिले है ये डिले हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कांस्टेंट। सो इट डिस्क्राइब्स द स्पीड विथ विच द मेजर्ड प्रोसेस वेरिएबल दैट इज पीवी रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द कंट्रोल आउटपुट। कंट्रोल आउटपुट के हिसाब से कैसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे इनपुट में, ये डिसाइड करता है हमारा टाइम कांस्टेंट। इट डिस्क्राइब्स द स्पीड with which the measured process variable responds to changes in the control output. More specifically, it represents the time needed for process variable to reach 63.2% of its total and final change. जो total और final change होने वाला है उसके 63.2% तक पहुंचने का जो टाइम है हमारे प्रोसेस वेरिएबल का, उसे बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। वो रहता है हमारा टाइम constant. Like other model parameters, the process time constant can be calculated by manual method or some graphical analysis method. Generally इसको tau से डिनोट किया जाता है टाइम कांस्टेंट को, and it is equal to -1 by real part of pole location. ये generally -1 by real part of pole location रहता है tau. Okay? So -1 by real part of pole location, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरा g of s है, दैट इज अ ट्रांसफर फंक्शन, इट इज इक्वल्स टू 25u इंटू s प्लस 1 अपॉन s प्लस 5। सो ये s प्लस 5 जो है यहाँ से मुझे पोल लोकेशन मिल जाएगा। s प्लस 5u है, प्लस 5u है मतलब मेरा जो पोल लोकेशन है एक्चुअल पोल लोकेशन वो रहेगा -5। कितना रहेगा? -5। जो हमारा पोल और जीरो डायग्राम है तो यहाँ से ये -5 पर रहेगा। ओके, पोल लोकेशन, एक्चुअल पोल लोकेशन। सो -1 बाय -5 में करूँगा, टाउ इज इक्वल्स टू -1 बाय -5, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, 1 बाय 5 इज नथिंग बट 0.2। सो दिस इज इन सेकेंड्स। सो टाइम कांस्टेंट इज इन सेकेंड्स, इसका यूनिट जो है सेकेंड्स है। सो टाउ इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए यहाँ पर वो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोल लोकेशन। लेट अस डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट दिस टाइम डोमेन specifications, or it is also called as transient response specification. This diagram represents all the type of time domain specifications which are present in steady state and transient state response analysis. Okay, so the response up to this settling time, so there are time marks on x-axis and then there are these responses. So this is TD, which is also called as delay time. This is TR, which is also called as the rise time. Then there is TP, which is also called as, which is known as, not also called as, which is known as peak time. Then there is settling time. Then there is peak overshoot. So these terms we are going to study in coming slides. But just for your information, this is settling time. Settling time, not setting time. सेटलिंग टाइम मतलब जहाँ से हमारा रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। सेटल हो रहा है मतलब क्या? स्टेडी हो रहा है। हम बोलते हैं ना हमारे लाइफ में हम सेटल हो गए बाबा, हम हमारे लाइफ में भी स्टडी हो गए, बराबर। स्टडी हो गए मतलब बहुत वेरिएशन नहीं, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है हमारे लाइफ में कुछ ज़्यादा ऐसा, ठीक है, बहुत सिंपल और स्टडी लाइफ हमारी चल रही। सो यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स है, यहाँ से आगे जो भी रिस्पॉन्स है वो स्टेडी हो जाता है, और इसके पहले का जो रिस्पॉन्स है वो रहता है ट्रांजिएंट, मतलब वेरिंग, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से बहुत चेंजेस हमको दिख रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। सो दिस पार्ट ऑफ दिस डायग्राम और दिस टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जिसके अंदर हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे हैं? चेंजिंग है, वेरिंग है। ओके, और सेटलिंग टाइम के बाद का जो रिस्पॉन्स है उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ऑलमोस्ट
लाइन से कैसा है, पैरेलल है, लाइन से बहुत क्लोज है। ये जो हमारा लाइन है, मीन लाइन, इससे बहुत ऊपर नीचे नहीं है, बहुत क्लोज उससे चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, सो लेट अस डिस्कस द वेरियस इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। सो पहला है डिले टाइम। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच हाफ ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फ्रॉम जीरो इंस्टेंट। जीरो से लेके हाफ वैल्यू तक पहुंचने के समय को बोला जाता है डिले टाइम। ओके, जो भी हमारा फाइनल वैल्यू रहेगा उससे हाफ तक पहुंचने का जो टाइम है वो रहेगा मेरा डिले टाइम। जैसे अगर ये फाइनल वैल्यू है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक ये जीरो से शुरू किए और यहाँ तक पहुंचे, तो इन दोनों के बीच का जो 50% है, मतलब हाफ है, वहाँ पे रहेगा मेरा डिले टाइम। सो दिस इज 0.5 अगर है, सो दैट इज माई डिले टाइम। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय TD and its formula is TD is equals to 1 plus 0.7 delta upon omega n. Now this delta is nothing but damping ratio, damping factor delta. It is also written as zeta. Okay, इसको zeta भी लिखा जाता है। Okay, इसको zeta भी लिखा जाता है, which is that is the symbol that looks like capital E. Okay, so zeta भी इसको लिखा जाता है, ऐसा कुछ सिंबल है हमारा zeta का। Okay, ओके, जीटा, इसको जीटा भी लिखते हैं और कई जगह पे डेल्टा भी। हम डेल्टा यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो जीटा भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर्मूला इज 1 plus 0.7 डेल्टा अपॉन ओमेगा एन। ओके, सो दैट इज डिले टाइम। लेट अस डिस्कस अबाउट सेकंड टाइम, दैट इज राइज टाइम। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मतलब 100%, 1%, 100% तक पहुंचने का जो समय है रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्स 0 से शुरू हुआ और फाइनल वैल्यू तक जो पहुंच रहा है, सो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को बोलते हैं हम राइज टाइम। ओके, उसका फाइनल वैल्यू तक का पहुंचने का समय है राइज टाइम। दिस इज एप्लीकेबल फॉर अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स एंड फॉर ओवर डैम्प्ड सिस्टम कंसिडर द ड्यूरेशन फ्रॉम 10% to 90%। यही ड्यूरेशन अंडर डैम्प या ओवर डैम्प सिस्टम के लिए, जिसके अंदर डैम्पिंग किया है, उसके लिए यही राइज टाइम रहता है 10% से 90% तक का। ओके, सो राइज टाइम इज डिनोटेड बाय TR एंड दैट TR इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। ओके, सो पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। सो ओमेगा डी इज नथिंग बट योर damping frequency. Okay, so from above equation we can conclude that the rise time, that is TR, and damp frequency omega d are inversely proportional to each other, because this pi minus d, if you keep it constant, or if it is constant, pi minus theta, if it is constant, then your rise time will be directly proportional to your, inversely proportional to your damp frequency omega d. ओके, सो जितना ओमेगा डी बड़ा रहेगा, मतलब जितना डैम्पिंग ज़्यादा रहेगा, उतना राइज टाइम कम रहेगा। ओके, सो राइज टाइम जितना ज़्यादा उतना ओमेगा डी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पीक टाइम के बारे में बात करते हैं। पीक टाइम, पीक मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, हाईएस्ट या एपेक्स, सबसे टॉप का। सो ये पीक टाइम है मेरा TP, ये है यहाँ पर मार्क किया हुआ। सो दिस इज माई TP। ओके, peak time. So it is the time required for the response to reach the peak value, maximum value को, not 100% बोल रहा हूँ मैं, maximum value reach करने के लिए, first time में maximum value reach करने के लिए जो time लगेगा, it is peak time। क्या है ये peak time? It is the time required for response to reach the peak value for first time, and it is denoted by TP at time t is equals to TP. The first डेरिवेटिव ऑफ रिस्पॉन्स इज 0। जो रिस्पॉन्स का फर्स्ट डेरिवेटिव रहता है वो कैसा रहता है, 0 रहता है एट टाइम t इज इक्वल्स टू TP। सो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। सो TP इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा डी, पाई बाय ओमेगा डी। सो पाई अपॉन योर डैम्प
फ्रीक्वेंसी। सो इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं, अगर ये पाई कांस्टेंट है विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो Tp is equals to 1 by omega d which is also inversely proportional to the damped frequency. सो आपका जो पीक टाइम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे ओमेगा डी से, मतलब डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी से। जितना ज़्यादा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी उतना कम हमारा टीपी। ओके, आगे जाते हैं विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, पीक ओवरशूट जिसको बोला जाता है। पीक ओवरशूट मतलब ये है हमारा एमपी, एंड पीक ओवरशूट इज डिफाइंड एज डेविएशन ऑफ रिस्पॉन्स एट पीक टाइम। जो पीक टाइम है, बराबर, यहाँ से जो डेविएशन हो रहा है हमारे रिस्पॉन्स का फ्रॉम फाइनल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड एज पीक ओवरशूट। उसको क्या बोलते हैं हम? पीक ओवरशूट। जैसे कि ये है मेरी फाइनल वैल्यू, ओके, ये 1 जो दिख रहा है ना, 1 की स्ट्रेट लाइन, ये है मेरी फाइनल वैल्यू। इस फाइनल वैल्यू से ये जो पॉइंट है इट इज पीक पॉइंट। ओके, ये पीक टाइम है मेरा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द डेविएशन फ्रॉम फाइनल वैल्यू। ये फाइनल वैल्यू और मेरा पीक टाइम, इनके बीच में क्या है? ये डिफरेंस है। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज पीक ओवरशूट। ओवरशूट कब होता है? जब ज्यादा हमारा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, ओवर रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, सो दैट इज पीक ओवरशूट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम ओवरशूट भी इसको बोला जाता है। हमारे एक्चुअल वैल्यू से हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। So that is the deviation of the response at peak time from final value of the response. Peak time और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है मेरा पीक ओवरशूट। मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट, ओके, परसेंटेज ऑफ एमपी विच इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस डेल्टा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%, और सिंपली mp इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस डेल्टा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट द परसेंटेज ऑफ पीक ओवरशूट, दैट इज परसेंटेज mp, विल डिक्रीज इफ डैम्पिंग रेशियो इंक्रीजेस। अगर डेल्टा इंक्रीज होगा, अगर डैम्पिंग रेशियो इंक्रीज होगा तो मेरा पीक ओवरशूट क्या होते जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो दिस इज पीक ओवरशूट एंड दिस इज द फाइनल, दैट इज सेटलिंग टाइम। सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच द स्टेडी स्टेट कंडीशन। जो रिस्पॉन्स है 0 से लेके स्टेडी स्टेट तक पहुंचने तक या सेटल होने तक जो टाइम लेगा, सो दिस टाइम फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम 0 टू दिस ts is nothing but your settling time. सेटल होने के लिए जो समय लगेगा, मतलब स्टेडी स्टेट स्टार्ट होने के लिए जो टाइम लगेगा, that is nothing but your settling time. So it is the time required for the response to reach the steady state and stay within specified tolerance bands, okay, around the final value. अगर ये final value है मेरी 1, ये स्ट्रेट लाइन जो है डार्क वाली, ये मेरी final value है, तो इससे विदिन टॉलरेंस रेंज मुझे क्या रहना है? स्टडी रहना है। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है और यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो ये जो रेंज है ये है मेरी टॉलरेंस बैंड्स। ये कैसे है? मेरे टॉलरेंस बैंड है, मतलब ऊपर यहाँ तक और नीचे यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं? रिस्पॉन्स को टॉलरेट कर सकते हैं और इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ विद इन द स्टेडी स्टेट लिमिट्स। ओके, जैसे कि अगर ये इस तरीके से कर्व है, सो अगर ये इस तरीके से ही रहता है आगे भी, सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट। अगर बाय चांस अगर ये लिमिट से बाहर जाता है, सो इट इज़ वेरिंग एट अ हायर रेट, सो इसलिए ये स्टेडी स्टेट नहीं रहेगा, इट विल बिकम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ओके, सो जनरली जो हमारी सिस्टम है स्टार्ट होने पर कुछ समय लेती है, जहाँ तक वो ट्रांजिएंट स्टेट में रहती है, जैसे कि ये वाला पोर्शन, इसमें वो ट्रांजिएंट स्टेट में है और इसके आगे वो स्टेडी स्टेट में आ जाती है। तो क्या है हमारी सेटलिंग टाइम की लिमिट? सो सेटलिंग टाइम जो है, पहला टॉलरेंस बैंड उसका है 5% तक हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं, और दूसरा जो रेंज है वो है 2% टॉलरेंस बैंड। कितना परसेंट? 2%। सो 2% से 5% तक हम उसको क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं। सो द सेटलिंग टाइम इज डिनोटेड बाय TS। सो TS जो सेटलिंग टाइम है,
जो कि 5% टॉलरेंस बैंड के लिए दिया गया है. इट इज इक्वल्स टू टी अपॉन डेल्टा ओमेगा एन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टी, it is given by 3 upon delta omega n, which is equals to 3 tau. Okay, because tau is equals to 1 upon delta into omega n, damping factor multiplied by natural frequency. Okay, so 1 by delta omega n is also your tau. Okay, that is your time constant. So this formula is for 5%. ये 5% के लिए है. हम जनरली 2% के ऊपर कैलकुलेशन करने वाले हैं इन कमिंग न्यूमेरिकल्स. सो फॉर 2% टॉलरेंस बैंड, TS is equals to 4 upon delta omega n, that is 4 tau. Okay, so 4 tau याद रखना और 3 tau याद रखना. 5 के लिए 3 tau और 2 के लिए 4 tau. Okay, so this is settling time. So where tau or that tau is nothing but your time constant, which is equals to 1 by delta omega n, and both the settling time Ts and time constant tau are inversely proportional to damping ratio. ये जो damping ratio है इसको Ts भी inversely proportional है और tau भी कैसा है, inversely proportional है. And both settling time Ts and time constant are independent of system gain. ये ध्यान में रखना. ये कई बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आ सकता है कि जो सेटलिंग टाइम है या टाइम कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है हमारे सिस्टम गेन से. इट डज नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम गेन. दैट मीन्स इवन द सिस्टम गेन चेंजेस, सेटलिंग टाइम विल नॉट चेंज, टाइम कांस्टेंट विल नॉट चेंज. ओके, सो दिस वाज अबाउट टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन एंड टाइम कांस्टेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू find the derivation of rise time and the derivation of peak time. That may be asked in your examination of Dr. Babu. Also we are going to study the derivation of peak overshoot, as well as we are going to study 1 or 2 numericals that have come in your examination, final year examination. Okay, so till then please stay safe.